Good morning, dear students. This is Sudhi Shukla. Hope you are well. Dear students, as we have discussed about the satellite, means with that discussion, we are just able to understand that what is satellite, what are the orbit, what is the relationship of that satellite with that of orbit. Basically, I mean to say, because in this discussion we are going to solve a numerical, and numerical, if you are going to solve, you have to knowledge about the relationship between the terms, the parameters, the thing which is to be asked. So basically in today's discussion we will solve a numerical related to the satellite orbit. There, during my I have posted in a video, there we have discussed about the orbital elements: apogee, perigee, latitude, longitude, inclination angle. Lot of things we have discussed on. So dear students, based on that theoretical concept, we will solve few of the numericals. So today's discussion is for the numerical which is related with that of orbit. So let me write first numerical. After it all, we will go for the solution of that. So the question is, the orbital period of satellite is 650 minutes. Determine determine the semi major axis of the elliptical orbit. Dear students, in this question, first of all we have to know what question says. So let me read out once. The orbital period of a satellite is 650 minutes. Determine the semi-major axis of the elliptical orbit. That means orbital period of the satellite is given. Doesn't matter if the satellite is in low Earth orbit or medium Earth orbit or in geostationary orbit. But basically what is given as the orbital period of that satellite. And what is being asked? That determine the semi-major axis of that elliptical orbit. We all know that the path which follows a satellite, that is elliptical. Few of the satellites also follow circular paths, that are basically LEO satellites. But most of the satellites follow elliptical path. तो उसी एलिप्टिकल पार्ट के सेमी मेजर एक्सिस को कैलकुलेट करने की बात कह रहा है, मतलब पूछ रहा है. तो ऑर्बिटल एलिमेंट्स जब हम पढ़ रहे थे, उस दौरान हमें पता लगा ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, वी कम टू नो कि रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेमी मेजर एक्सिस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय
ए, स्मॉल ए। तो हमें ये तो पता लग गया कि कैलकुलेट हमने स्मॉल ए को करना है। और मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी, मैंने पोस्ट किया था जब वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑलवेज राइट द गिवन डेटा। सिंगल डेटा गिवन है, एंड व्हाट इज दैट? ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल टाइम या ऑर्बिटल पीरियड जिसको कहते हैं, वो गिवन है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल पीरियड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आइदर इट फ्रॉम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, किससे करते हैं? क्योंकि अगर हमें टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म्स और द सिंबल्स वी आर यूजिंग, वी कांट सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल, क्योंकि हम रिलेशनशिप ही नहीं निकाल पाएंगे, फॉर्मूला ही नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। और अगर ये सब प्रॉब्लम है तो नेवर एंड नेवर यू आर एबल टू सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल। सो टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल टी से। सो व्हाट इज दैट? कैपिटल टी इज गिवन एज 650 मिनट, 650 मिनट गिवन है। ये ऑर्बिटल पीरियड है, दिस इज व्हाट? कैपिटल टी, 650 मिनट। सो capital T is given 650 and small a is being asked to you. So you have to know the relationship in between this capital T and this small a. You have to remember. Just think about it. After it all, we will go for the solution. Just think, I have told you that what is the relationship in between the time period of a satellite and the semi-major axis of the elliptical orbit in which the satellite is going to rotate around the earth. Just think about it. So I hope you get the relationship that t is equals to 2 pi square root of a cube upon mu, जहां पे हम देख पा रहे हैं दिस इज व्हाट? कांस्टेंट, दिस इज स्मॉल ए जिसका क्यूब है, एंड व्हाट इज दैट स्मॉल ए? दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। वो क्या आपका? सेमी मेजर एक्सिस। और अगर बात करते हम सेमी माइनर एक्सिस का, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल बी। सिर्फ अगर मेजर एक्सिस की हम बात करते, तो दैट विल बी 2a। सिर्फ अगर माइनर एक्सिस की बात करते, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2b। आई हैव टोल्ड यू। तो सेमी मेजर एक्सिस की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, और ये रिलेशनशिप होता है। वी हैव टू रिमेंबर। सो what we have to find this a, is it t available for you? Yes, that is what orbital time period, that is available. Is mu is available to you? No, mu is not available. So is there any way, is there any method through which we are able to calculate this mu? Yes, we will learn. So पहले हम इस 650 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, तो सिंपली इट विल बी 650 इंटू 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो टोटल हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, दैट वैल्यू विल बी, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 650 इंटू 60, वी हैव द वैल्यू, so we have the value 39,000.
सेकेंड्स। मीन्स अगर हम ऑर्बिटल टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास जो सैटेलाइट टाइम ले रहा है ऑर्बिट करने के लिए वो 39,000 सेकेंड है। दिस इज व्हाट कैपिटल टी। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस म्यू? थिंक ओवर इट। म्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? we know we know that this mu is equals to capital G into M. Is there any problem? This mu is equals to capital G into M, and we all know the G value is 6.67 into 10 the power minus 11 into 5.98 into 10 the power 24. That is Newton meter square per kg. This is what the way through which. So dear students, कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है 6.6 into 10 the power minus 11, और जो मास हमने कंसिडर किया that is 5.98 into 10 the power 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg. Generally this value will be provided to you as a given data, but if not, simply you have to take this value. When you are going to multiply these two values, you have simply, let me do that, 6.67 into 5.98, you have the value 39.8 into 10 the power minus 11 24 13. What will be that value? That value is basically 39.8 into 10 the power 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg. सो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई, दैट इज म्यू इक्वल्स टू 39.8 into 10 the power 13, capital T is equals to 39,000 second. So what is next? We have to put down the values. So this T is equals to 39,000 is equals to 2 pi, that is 2 into 3.14 in bracket a cube by gm. And what is that? gm is equals to 39.8 into 10 the power 13. So we have to only solve out this. This will be 39,000 divided by 6.28 is equals to a cube upon 39.8 into 10 the power 13. Just solve out. And while solving, means 39,000 divided by 6.28, you have this value. Here I can write simply a cube upon 39.8 into 10 the power 13 is equals to 6210.19. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. व्हाट इज नेक्स्ट? सिंपली हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं.
while squaring both sides, what we have, a cube upon 39.8 into 10 the power 13 is equals to 6210.19 का होल स्क्वायर. इस वैल्यू को होल स्क्वायर करेंगे तो वी हैव सच वैल्यूज that comes to be 38566,473.28. So we are going to multiply this value directly. This is what, 13. So while multiplying, we have the value a cube is equals to 15,34,945,636.7398 into 10 the power 13. दिस इज द वैल्यू. जब हम इसका स्क्वायर करके इस 39.8 इंटू 10 द पावर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव सच वैल्यू 10 द पावर 13 एज इट इज हमने यहां पे रख दिया. सो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू, a इज इक्वल्स टू सिंपली 15,34,945,636.74 simply if you consider into 10 the power 13 की पावर 1/3. आप सिंपली क्या करिए, कैलसी का यूज करके 1/3 वैल्यूज जो है वो ले लीजिए, क्यूब रूट इसका ले लीजिए. तो यू हैव द वैल्यू जस्ट मैच इज 535.424 into 10 the power 4. So we have this such value, a is equals to, and simply we can write a is equals to 5350 kilometer. Means from it we can come to know कि अगर जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज 650 मिनट, अगर ऑर्बिटल पीरियड उसका 650 मिनट है, तो जो सेमी मेजर एक्सिस, जो सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू होगी दैट विल बी 5350 किलोमीटर. तो कितनी आएगी, 5350 किलोमीटर. सो सिंपली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि पहले आप जो टाइम पीरियड है उसको, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, डेटा अगर उसमें चेंज करता है, तो व्हाट सिंपली यू हैव टू डू, सिंपली पहले आप इसके जो टाइम दिया हुआ है उसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर म्यू कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्टली. अगर गिवन है तो आप शफल करिए, जी और एम की वैल्यूज अगर कुछ गिवन है, मास अगर चेंज हो सकता है, जी की वैल्यू विल नॉट चेंज, मास की वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए. मास की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन यूज दिस वैल्यू और उस वैल्यूज को यहां पुट करके ए का क्यूब रूट आपने निकालना है. इस बात को लास्ट टाइम में आपने ध्यान देना है कि ए क्यूब की बात कर रहे हैं हम. दिस विल नॉट बी द डायरेक्टली आंसर, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब. तो वहां पे आप नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे थ्रू द taking the value of a cube root. So I hope you have noted down this solution of this numerical. Just take the screenshot. I am going to rough it. Dear students, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेट मीन्स सैटेलाइट है वो
रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ के अराउंड, जिसका जो टाइम है, ऑर्बिटल पीरियड का जो टाइम है, डेट इज व्हाट 650 मिनट। और हमने सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सिंपली इससे हमें पता लगा कि कैसे हम सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल that is basically based that will be based on the apogee and perigee height, जहां पे हम उसी ऑर्बिटल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल the numerical. After it all, we will go for the discussion. The next type of numerical is the apogee and perigee of an elliptical satellite orbits are 3000 kilometer and 200 kilometer. So determine the eccentricity semi major axis and semi minor axis. Dear students, in this problem, first of all, let me read out this problem, because it may be chance that words are not visible to you. So listen carefully. The apogee and perigee of an elliptical satellite orbits are 3000 kilometer and 200 kilometer. These are the two given data, apogee and perigee. So what we have to determine? We have to determine the eccentricity, semi major axis and semi minor axis. Means with the help of these two given data, apogee and perigee height, you have to calculate three datas: eccentricity, semi major axis and semi minor axis. So dear students, आपको पता होना चाहिए, फिर से वही जो भी मैंने आपको बताया कि यू हैव टू नो कि जो रिप्रेजेंटेशन है इसेंट्रिसिटी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में वही टर्म्स आएंगे और वो टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं वेयर दिस इज दैट, तो वो अगर हमें नहीं पता है तो हमें फॉर्मूला याद होते हुए भी आर अनेबल टू यूज दैट। तो अगर हमने उस फॉर्मूला से जो हमें गिवन डेटा है उसका यूज करके हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर दैट सिंपली वी हैव टू नो और वी हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दोज टर्म्स रिलेटेड विथ इट। सो डियर स्टूडेंट्स, in this, first of all we have to know
कि एपोजी और पेरिजी हाइट को जो यहां पे दिया हुआ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन टू यू? आर ए एंड आर पी। व्हाट इज आर ए? आर ए इज गिवन एज 3000 किलोमीटर। What is RP? RP is given at 200 kilometer. So this is what? RA and RP. So first of all we have, this is the given data. अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसेंट्रिसिटी सेमी मेजर एक्सिस दैट इज A and B. तो वी हैव टू नो कि इसेंट्रिसिटी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। This is the given data. First, we have to find out eccentricity, and that is generally represented by small e. इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। याद रखना है आपने, नेवर फॉरगेट दैट, टिल जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक तो ना ही भूलना है आपको। तो जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई एंड इज गिवन एज आर ए माइनस आर पी अपॉन आर ए प्लस आर पी। व्हाट इज आर ए and what is RP? I have told you. Eccentricity, that is what given by RA minus RP and RA plus RP, and we all know the value of RA is 3000 kilometer minus RP is given as 200, and this value is given as 3000 plus 200. So the value will be 2800 upon 3000 minus 200 is, that is what, 2800, and this value will be 3200, means 0 0, it's 7 by 8, and I think this value will be 864, that value will be I think 0.87. Let me solve out. 7 by 8 is equal to 0.875. What is this value? The calculated E is what? 0.875. This is the calculated value for the eccentricity of a orbit, elliptical orbit, जहां पे एपोजी और पेरिजी हाइट जो है that is given as. So through this way we are able to calculate the value of E. Now second we have to calculate semi major axis. And in previous discussion, while solving the previous numerical, I have told you the representation of this semi major axis, that is what represented by small a. And we have to know, अब हमारे पास तीन गिवन डेटा हो गए, एक इसेंट्रिसिटी हो गया, एक आरए हो गया और एक आरपी हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री, पहले तो हमारी इसेंट्रिसिटी के लिए दो ही डेटा गिवन थे, तो सिंपली वी हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला। नाउ with the help of these three available data, RA, RP and E, you are free to calculate the semi major axis, that is A. So what is this A? Simply RA plus RP by 2. Means semi major axis calculate करने के लिए simply you can calculate this by RA plus RP by 2. And dear students, we are aware of this value RA plus RP, that is what, 3000 plus 200
by 2, that means 3200 by 2, that means 1600, that means 1600 kilometer. That means the value for this A is 1600 kilometer. जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आई स्मॉल ए की, that is we calculated as 1600 kilometer. Now we have to go for the third value, that is what, semi minor axis. And we all know this semi minor axis, the representation of which is by small b. किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल b से, मतलब इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी माइनर एक्सिस को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए हमारे पास जब हम इस सिचुएशन में है टू फाइंड आउट द सेमी माइनर एक्सिस दैट इज स्मॉल b, उस केस में जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास दैट इज आर ए, आर पी, ई एंड स्मॉल ए, इतने डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं इस स्मॉल b की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए. डिपेंड करता है, तो स्मॉल b का सिंपल हम फॉर्मूला लिखते हैं, स्मॉल b इक्वल्स टू आर ए माइनस आर पी बाई 2. What is this RA? 3000 minus 200 by 2, that is 2800, 2800 बटा 2, that is 1400. So the value of this will be 1400 kilometer. मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस डिस्कशन सिर्फ दो वैल्यूज आपको गिवन थे, आर ए एपोजी हाइट रिप्रेजेंटेड बाय आर ए, पेरिजी हाइट. व्हाट इज एपोजी, व्हाट इज पेरिजी? एपोजी दैट द पॉइंट विच इज फार फ्रॉम द अर्थ. लेट सपोज ये अर्थ है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो जो पॉइंट इसके पास होगा एक पॉइंट सैटेलाइट का और एक पॉइंट इससे दूर होगा, तो जो पॉइंट अर्थ से दूर है दैट इज व्हाट फार फ्रॉम द अर्थ, दैट इज व्हाट एपोजी. और जो पॉइंट अर्थ के, अगर ये अर्थ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और अर्थ के पास है, दैट इज व्हाट पेरिजी. तो यही एपोजी और पेरिजी हाइट गिवन है आर ए और आर पी, एपोजी हाइट, पेरिजी हाइट. So with the help of this two given data, we are able to calculate the eccentricity, क्योंकि eccentricity की हेल्प के थ्रू ही इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो ऑर्बिट है दैट इज सर्कुलर और एलिप्टिकल. अगर E की वैल्यू अनफॉर्चुनेटली 0 आ गई, दैट मीन्स द ऑर्बिट इज सर्कुलर. दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन कि अगर E की वैल्यू, जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट की है, इस E की वैल्यू अगर 0 होती है तो जो ऑर्बिट होगा दैट विल बी सर्कुलर ऑर्बिट, जो मोशन होगा दैट विल बी सर्कुलर. लेकिन अगर वो वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, दैट मीन्स कि जो ऑर्बिट है दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट. उसका नेचर किस तरह का है? एलिप्टिकल टाइप का नेचर है. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर हम कहते हैं कि सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे. एंड व्हाट दिस वैल्यू कम्स टू बी 0.875. सो डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन डेटा वी आर एबल टू नो द इसेंट्रिसिटी, द सेमी मेजर एक्सिस दैट इज व्हाट 1600 किलोमीटर. आई एम जस्ट टेलिंग यू and repeating the number again. E is equals to 0.875, A is equals to 1600 kilometer and B value to be 1400 kilometer. I always used to say कि आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, मे बी वैल्यूज में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, बट दैट इज नॉट अ टफ न्यूमेरिकल. इसमें कुछ
अब 2800 को 2 से भाग देंगे हम तो नो डाउट 1400 ही आएगा, 1400 आएगा। अब अगर वैल्यूज क्रिटिकल होती 3.5.9 इंटू 10 दैट समथिंग वैल्यूज, तो मे भी चांसेस थे कि वैल्यूज थोड़ा बहुत इधर उधर डिफर करती। और द कैलकुलेशन इज सिंपल, मैथमेटिक्स इज सिंपल, देर इज नो एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एजप्शन या कंसिडरेशन टाइप का केस नहीं है, तो वैल्यूज विल बी एग्जैक्टली सेम। आप भी कैलकुलेशन करें, मैं भी कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर दिया है, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट मैच इट। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ लग गया। So dear students, I hope you understand. Just note it down because I am going to rough this numerical. Now we will solve another type of numerical. Either just note down or take the screenshot of it. Both options are available for you. But 4 से ज़्यादा ऑप्शंस की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि अब इस सेमेस्टर में आपने ऑप्शंस पे ही खेलना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द chances of option A, B, C, D, maybe EV ऑप्शन आ जाए, बट नॉट मोर देन डेट ऑफ, उससे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास। So let me write down the next numerical. After it all, we will go for the discussion of that numerical. Determine sorry, this is S. Escape velocity for an object which is launched from the surface of Earth to a point where the radius of Earth is kilometer and G is to be given as 6.67 into 10 the power minus 11 Newton meter square per kg square, and the M value is given as 5.98 into 10 the power 24 kg. So in this numerical, let me read out this first. पहले ही पूछ दिया इसमें जैसे और क्वेश्चंस थे उसमें तो बाद में कहता था कि ये गिवन है और फिर कहता था कि डिटरमाइन, या पहले ही आपसे पूछता है, कहता है कि डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, एस्केप वेलोसिटी, which is launched from the surface of earth to a point where the radius of earth is 6360 किलोमीटर। मतलब आपको एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की फाइंड करना है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं अर्थ से सरफेस से लगभग
6360 किलोमीटर की दूरी पे। तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट जो इस डिस्टेंस पे जा रहा है, इससे वो इस अर्थ एटमॉस्फेयर को स्केप करके निकल जाएगा। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। So the distance is what? 6360, and you have to find out this velocity. और आपको साथ में जो गिवन डेटा है, देखिए यहां पे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने कराया, इसीलिए दो तरह के न्यूमेरिकल्स ऐसे दिए, एक जहां पे जी और एम गिवन है और एक जहां पे जी और एम नॉट गिवन। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो कैपिटल जी की वैल्यू डेट इज 6.6 × 10⁻11 जो हमने वहां पे लिखा था पिछले न्यूमेरिकल में, और मास भी हमने यही कंसीडर किया था 5.98 × 10⁻24, और हमने जब जी इंटू एम किया था तो वैल्यूज वॉज समथिंग 39.8 इंटू 10⁻, आई थिंक दैट वॉज 13, कुछ उसके नियर अबाउट वैल्यूज आई थी अभी जो हमने प्रीवियसली अभी न्यूमेरिकल हमने किया है। फिर से हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और वी विल अगेन मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज। तो कहीं ना कहीं अगर हमें escape वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू नो द रिलेशनशिप गिवन डेटा जो आपका है, अगेन जो गिवन डेटा है डेट इज व्हाट गिवन, दिस आर वैल्यू, व्हाट इज दैट 6360 किलोमीटर, ये वैल्यू गिवन है आपको। लेकिन यहां पे जो कैपिटल जी है वो मीटर में है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं, मीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर को हम सिंपली लिख रहे हैं 6360 इंटू 10⁻3, इस जीरो को हटा के आइदर वी कैन राइट 10⁻4, मतलब 636 इंटू 10⁻4 वी कैन सिंपली राइट इन अ मीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। द जी इज गिवन एंड एम इज गिवन। तो हमें पता होना चाहिए कि escape वेलोसिटी का इन गिवन डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है। Just think about it. I always used to give you few seconds to remember the formula. Although I am for you, I will let you know all the things, but still just remember out. Just think about it and tell me कि क्या रिलेशनशिप है इस गिवन डेटा में। आप सोचेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे चीजों को, तो नेवर एंड नेवर कभी कोई प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या फॉर्मूला हो सकता है यहां पे। अदरवाइज तो मैं हूं ही आपके लिए। 24x7x365 और 366 तो 4 साल में आएगा, 366 तो आता रहेगा। तो एबिलिटी of me for you is always there. Probability is high. So we escape, simply we can write, and the relationship is 2 mu by r. I hope you remember v escape is equals to 2 mu by r. ये escape velocity का फॉर्मूला है। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा डेटा गिवन है, अवेलेबल है, एंड विच इज नॉट गिवन। आर सिंपली वी हैव राइट इट डाउन, दिस इज इन मीटर, 6360 into 10⁻3 meter. Mu, again we will follow the same way. We are going to multiply this g and this m value, and what we have, let me use the calculator. What this value is, 6.67 into 5.98, that is what, 39.8. That means the mu value is to be calculated is 39.8 into 10⁻11 10⁻24, that is what, 10⁻13, 13 और 24 में से 11 जाएगा कितना होगा, 13 बचेगा, 10⁻13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg. So simply we have to put this value here, and we have square root of 2 into 39.8 into 10⁻13
अपॉन आर वैल्यू 6360 इंटू 10⁻³ ये वैल्यूज यहां जाएंगी तो यहां पे हो जाएगा 10 10⁻10। इसको हम डिवाइड करेंगे 79.6 डिवाइडेड बाई that values come to be, just use the calculator and tell me the values which you are able to calculate. So this value by 6360 and the square out of it, the values comes to be 0.111873 further on into 10⁵ हमने स्क्वायर रूट लेना है, हमने स्क्वायर रूट लिया एंड व्हाट वी हैव दिस वैल्यू, गॉट इट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट डियर स्टूडेंट्स द एस्केप वेलोसिटी। सो दिस इज इन मीटर, क्योंकि हमने यहां पे आर को किस में ले रखा था, मीटर में ले रखा था। तो हम इसको अगर किलोमीटर में कैलकुलेट करें तो सिंपली अगर यहाँ पे 2 जीरो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी हैव दिस 8 वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट एस्केप वेलोसिटी मीन्स हमसे पूछा गया एस्केप वेलोसिटी क्या है। जब हमें गिवन है रेडियस जो डिस्टेंस है, हमें गिवन है कैपिटल जी की वैल्यू, हमें गिवन है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये सब हमें गिवन है। और एस्केप वेलोसिटी के इस रिलेशनशिप से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी हैव 11 पॉइंट, द वैल्यू फॉर दिस एस्केप वेलोसिटी टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगेन जो गिवन डेटा है इस आधार पे हमें ये पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाएगा। तो एक मिनट में जस्ट मल्टीप्लाई डाउन, एक घंटे में अगेन मल्टीप्लाई डाउन बाय 60, 24 आवर्स में जस्ट मल्टीप्लाई बाय 24। मतलब इतने ड्यूरेशन में इतने किलोमीटर का वो दूरी तय कर रहा है। दैट मीन्स नथिंग बट द वेलोसिटी एस्केप, इसी वजह से एस्केप इसका नाम रखा गया। इतनी जोर से गायब होगा कि क्लियरली विजिबल नहीं लिखा हो, उस पर विजिबल नहीं होगा कि उसके लोगो पे क्या लिखा हुआ है, BIT ITM KIPM क्या लिखा हुआ है। तो जस्ट जोकिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। होप जो तीनों टाइप्स के न्यूमेरिकल हमने समझा रिलेटेड टू द एपोजी पेरेजी हाइट, या जहां पे हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर पा रहे हैं, या टाइम पीरियड से रिलेटेड, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस से रिलेटेड जो हमने डिस्कशन किया, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्स में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। वैल्यूज में डिफर, या हो सकता है कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और वैल्यूज दे दे, लेकिन रिलेशनशिप अगर आपको याद है, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, कभी भी जब भी न्यूमेरिकल करिए तब आप गिवन डेटा लिखिए, उसके बाद आप रिलेशनशिप को लिखिए, फिर देखिए अगर वो इनसे हटके वैल्यूज गिवन है तो इसमें ले आने के लिए आपने क्या करना होगा। जैसे जी और एम गिवन है तो म्यू नहीं गिवन था
mu is equals to gm, ये रिलेशनशिप इनडायरेक्टली था, हमने पुट किया, एंड व्हाट वी हैव द सॉल्यूशन फॉर एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द फील्ड. So this is all for today's discussion. Thank you, students. I hope you will take care of yourself. So God bless you. Thank you.